Hello, students. How are you doing? I hope you're doing good and enjoying the sessions. And yeah, doing your homework also, no? Practicing along with that because I really very much support practice based learning. And it's logical also because if you don't practice what you have learned, then there are higher chances that you will forget it within a very like 1 or 2 days maximum if you haven't revised it or majorly you haven't practiced it because maths is all about practice. Okay, so in the last few lectures we have completed our first chapter. I hope you got the concepts are pretty clear now, and whatever doubts you have, any kind of doubts while you are practicing the concepts or while you were watching the videos, and so you can just approach without any hesitation, and I'll be more than happy to answer each and every of your doubts. Okay, so guys, in this series we will look at chapter 2, which is polynomials, and it is the first lecture of this polynomials chapter 2 of class 10th. Yeah. Okay, so see, in the polynomials, what you just you are already familiar with the term polynomial from your earlier classes, and moreover you also know about the degrees and all that basic definition of polynomial. So skipping that, I hope you know all that. So what you have studied in polynomials in earlier classes, you have already studied only in one variable, polynomial in one variable. So what it looks like, polynomial in one variable, means like you have studied ax plus b type of polynomial. It means you have simply studied 4x plus 8, or it be 2x plus 1, or simple 2x, or x by 2. Yeah, so you have studied these kind of polynomials which are basically a polynomial in one variable, and moreover their degree is 1. So for those of you, I'm just repeating what the degree of the polynomial is. Okay, so if you have blur idea, or your idea is getting blurred, like what was the degree and all that, so just focus on the screen for few minutes. Okay, so any polynomial, ठीक है, if it is a polynomial in variable, let's say we are assuming that a polynomial means, first of all, polynomial will be a variable. देर विल बी ओनली वन वेरिएबल मतलब जैसे एक्स बाय हम मानते हैं तो एक ही वेरिएबल होगा. ओके, सो लेट्स से वी हैव एन एग्जांपल like 2x plus 1. This is an example of polynomial. Why we say it a polynomial? Because there is only one variable x. बाकी 2 1 ये सारे क्या हैं, इनकी वैल्यूज़ तुम्हें पता है, ये वेरिएबल्स नहीं है. ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, है ना. और वेरिएबल यहाँ पर क्या है, एक ही है जो कि है x. ऑल राइट, नाउ लेट्स एज्यूम 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है, इसमें भी क्या है, x ही दिख रहा है तुम्हें, x की टर्म्स है सारी, बाकी तो कांस्टेंट्स हैं, है ना. x के अलावा कोई दिख रहा है, y है, z है, p है, q है, कुछ नहीं है, है ना. तो ऑल दीज आर बेसिकली पोलिनोमियल्स. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल्स. ऑल राइट, सो अगली बात हम करते हैं कि हम पोलिनोमियल तो बोल रहे हैं बट वी आर टॉकिंग अबाउट डिग्री ऑल्सो. सो ये डिग्री क्या होता है बेसिकली, लेट्स से अगर कोई पोलिनोमियल है 2x प्लस 1. ठीक है, तो क्या होता है, कोई भी पोलिनोमियल है, एक्सप्रेशन है, या फिर 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है ना. पूरी एक्सप्रेशन में जो हमारा वेरिएबल होगा, एक ही वेरिएबल होगा. ठीक है, और वही उसकी पावर्स चेंज होती रहेंगी. तो उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो हमारी क्या होगी, डिग्री. हमारे पूरे पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर विल बी द डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल. ऑल राइट, सो अब डिग्री हमें पता लग गया है तो हम आगे बढ़ते हैं. तो अगर हम आगे देखते हैं तो लेट्स से वी हैव एन एग्जांपल्स ऑफ पोलिनोमियल्स like this. Okay, just I'll not give another examples, just focus on your book only. 2y square minus 3y plus 4. यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है, y है केवल, है ना. y के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है. और यहाँ पे मैक्सिमम तुम्हें क्या दिख रहा है, y की पावर. देखो इस वाले एक्सप्रेशन में फर्स्ट वाला में देखोगे, लेट मी जूम इट.
ठीक है। अगर तुम फर्स्ट वाले में देखते हो इसमें वाई स्क्वायर है, मतलब वाई की हाईएस्ट पावर 2 है। पूरे में देखोगे, पूरे में देखोगे तो पहले वाले में लिखो, पहले में कांस्टेंट टर्म बोलते हैं जो 2 3 4, ये क्या है तुम्हारी कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो पाएगी, ठीक है। और वेरिएबल्स कौन सी हैं, वाई हैं तुम्हारे पास, ठीक है। अब वाई की यहाँ पर ये वाले एक्सप्रेशन में वाई की पावर 2 है, ये वाले एक्सप्रेशन में वाई की कितनी पावर है, 1 है ना, मतलब 1 सिंपल हम वाई लिख देते हैं, वाई की पावर 1 लिखने से अच्छा हम वाई लिख देते हैं, एक्स की पावर 1 लिखने से अच्छा हम एक्स ही लिख देते हैं, 2 की पावर 1 लिखने से हम 2 ही लिख देते हैं ना। ये बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं जो हमें पहले से याद हैं, मतलब ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं 1 बोलता हूँ तो तुम्हें याद होगा कि 1 हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी की भी पावर 0, एनी नंबर रेज टू द पावर 0, उसका क्या वैल्यू होगा, 1 आएगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ 2y टू द पावर -3 इंटू वाई टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू वाई टू द पावर 0। ओके, सो it means here is my power 2, here is my power 1 and here is my power 0 of the variable that we have in this whole polynomial expression, ठीक है। तो अब क्या है, ये तो तुम्हारे हो गए। अब इसमें हाईएस्ट पावर हमने बात की थी, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो, क्या दिख रही है तुम्हें, 1 नहीं है, 0 नहीं है, तो क्या है, 2 है। यानी कि इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 2, ठीक है। और ये कौन सा है, अगर फिर इनके ना नाम होते हैं डिग्री के हिसाब से, वो हम अभी देखते हैं। तो बस अभी ये याद रखो कि तुम्हें डिग्री निकालना आ गया पोलिनोमियल का, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया, ओके। सो देखो, अब तुमने क्या पढ़े थे, तुमने ये एक्सप्रेशन इस टाइप का पढ़ा है, जैसे ये वाला, इसमें डिग्री बताओ, इसमें क्या होएगी। इसमें पहले तो वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल एक्स है, ठीक है। अब हर एक्सप्रेशन में देखो, इसमें एक्स की पावर 1 है, इसमें एक्स की पावर 0 मान लेंगे कांस्टेंट टर्म में, तो एक्स की पावर 1 ही मैक्सिमम है हमारे पास, है ना। मैक्सिमम पावर एक्स की क्या है, 1 ही है। यानी कि डिग्री क्या हो गई मेरे पास इस केस में, 1 हो गई। आई होप इट इज़ क्लियर, ऑल राइट। तो अगर 1 डिग्री है तो मैंने इसको बोला लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर डिग्री 1 होगी तो मैंने लीनियर बोला, अगर डिग्री 2 होगी तो मैंने क्या बोलूँगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर और डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो, कुछ एक्सप्रेशंस तुम्हारे पास ऐसे भी होंगे जिसमें तुम पता ही नहीं लगा पाओगे कि यार डिग्री क्या है, समझ ही नहीं आएगा तुम्हें, ठीक है। अभी तो तुमने नॉर्मल एक्सप्रेशन देखे हैं, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, है ना, जिसमें कुछ कांस्टेंट्स थे और कुछ नॉर्मल वेरिएबल्स थे, उनकी पावर्स तुम्हें क्लियरली दिख रही थी। अब मान लो कि तुम्हें इस तरीके का एक्सप्रेशन दे दिया, 1/x-1। अब ये तो यार लीनियर भी नहीं लग रहा और सिंपल फ्लो भी नहीं हो रहा, ऑल्दो एक्स एक ही वेरिएबल है, और ऑल्दो एक ही मतलब एक ही वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन उसका तो इस पूरे एक्सप्रेशन का तुम्हें नहीं पता ना, ठीक है। इन ये तरीके के जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, इस तरीके के, है ना, इनमें क्या है, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होते, ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होते, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स हमारा सिंपल क्या होगा, एक्स की पावर्स चलती रहेंगी, a0 एक्स टू द पावर 0, a1 एक्स टू द पावर 1, a2 एक्स टू द पावर 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो सिंपल ये चलती रहेंगी चीज़ें ऐसे, तो ये हमारे पास होते हैं इस तरीके का फॉर्मेट, ये ब्लॉक्स हैं छोटे छोटे, और ये पूरे मिलके इसको एक पूरा ब्लॉक बना रहा है जो कि पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पर तुम इसको a1 टू a0 एक्स टू द पावर 0, a1 एक्स टू द पावर 1 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो इट मीन्स इफ़ एक्सप्रेशन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इट इन दिस फॉर्म, और एक ही वेरिएबल रहना चाहिए, ठीक है, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये असली डेफिनेशन हुई, ठीक है। मतलब अब हमें पता लग गया कि पॉलिनोमियल हम बोलेंगे कैसे, कि कोई भी टर्म पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, ऑल राइट। सो अगला अगर हम देखें तो अगले बात करते हैं, अभी हमने देखा था कि डिग्री 1 हमने निकाल ली, डिग्री 2 निकाल ली। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, ये देखो, इसमें क्या है, 1/, इसको मैं लिखूं अगर अपने तरीके से, 1/3 u टू द पावर 1, कोई दिक्कत है, फर्स्ट एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिख लिया, सेकंड को मैंने
2u स्क्वायर, ठीक है। थर्ड को प्लस 5u टू द पावर 0, है ना, 1 है ना, 5 इंटू 1 तो 0 लिख दिया। अब देखो इसमें क्लियरली तुम्हें दिख रहा है कि भाई u की पावर एक तो 1 है, एक 2 है और एक 0 है, तो मैक्सिमम कौन सी है, 2 है, और इसमें वेरिएबल एक u ही है, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो वो क्या हो गई तुम्हारे पास, डिग्री, ठीक है। तुम्हें डिग्री पता लग गया। तो अगर तुम्हें डिग्री पता लग जाता है तो तुम पॉलिनोमियल का टाइप बता सकते हो, ठीक है। अगर 1 डिग्री होगी तो लीनियर होगा, 2 डिग्री होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो अब क्या होता है कि जनरली हम जो पढ़ेंगे ना, अभी जो जितने भी हमारे एग्जांपल्स आते हैं उसमें जनरली जितने भी हम पोलिनोमियल के जो कॉफिशिएंट्स हैं, कॉफिशिएंट्स की एक बार देख लेते हैं कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं। हमने देखे हैं जैसे इसमें वाई स्क्वायर माइनस 2, इसमें वाई सबसे पहले फर्स्ट टर्म है, ठीक है। ये क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू वाई की पावर 2। सेकेंड टर्म 2 इंटू वाई टू द पावर 0, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिग्री 2 हो गई, ठीक है। अब कॉफिशिएंट्स कौन से हैं, ये वाले टर्म्स कॉफिशिएंट हैं, ठीक है। ये वाले टर्म्स आपके कोएफिशिएंट्स हो गए। कॉफिशिएंट्स मतलब जो कांस्टेंट चीज़ें हैं, वेरिएबल्स के साथ कुछ कांस्टेंट चीज़ें मल्टीप्लाइड होंगी, है ना, उनको बोलेंगे हम वेरिएबल, वो कोफिशिएंट्स, ठीक है। ओके, तो जनरली हम जो पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे ना अपने कोर्स में, उसमें हमारा हमेशा याद रखना जो भी कोफिशिएंट्स होंगे वो हमेशा रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं जनरल एक एक्सप्रेशन बोलूँ पॉलिनोमियल का, a0 x0 a1 x1 a2 x टू द पावर 2 सो ऑन, ठीक है। ये क्या है, एक जनरल टर्म है, बढ़ती जाएंगी a3 x3 a4 x टू द पावर 4, है ना। मतलब जैसे जैसे मैं डिग्री बढ़ाता जाऊंगा, ये डिग्रीज चल रही है ना, ये बढ़ती जा रही हैं। अगर मैं इतना रखता हूँ तो ये लीनियर बन जाएगा, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक बन जाएगा। फिर और मैं आगे जाऊंगा, क्यूबिक मतलब जब 3 डिग्री हो जाएगी तो क्यूबिक बन जाएगा, है ना। ओके, तो जनरली इसमें जो a0 a1 ये क्या है, ये कॉफिशिएंट्स हैं, है ना। तो कॉफिशिएंट्स मेरे हमेशा रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। रियल नंबर्स की डेफिनेशन हमें क्लियर है, पहले हमने पढ़ी हुई है, पिछले ही चैप्टर में पढ़ी है, और 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में है, ठीक है। तो आई होप वो आपको याद ही होंगी, है ना। तो जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मैं कोई भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर रिप्रेजेंट करूँगा तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ठीक है। मतलब x की पावर 0, x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0 है यहाँ पे, तो डिग्री 2 हो गई, यानी कि क्वाड्रेटिक हो गया। और कॉफिशिएंट्स क्या हो गए, a b c, ठीक है। और जनरली हम ये मानते हैं अगर पोलिनोमियल है तो x का एक तो टर्म होगा ना, नहीं तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, है ना। भाई अगर मैं मान लो a को 0 रख देता हूँ इस केस में, है ना, अगर मान लो ए एक्स प्लस बी है, ये क्या है, ये लीनियर फॉर्म हो गई, है ना। तो अगर मैं ए को ही 0 रख दिया तो मेरे पास यहाँ बी बच जाएगा। बी मतलब ये एक कांस्टेंट टर्म है, जैसे 2x प्लस 1 है, अगर ये 2 की जगह 0 को रख दूँ मैं तो 0x प्लस 1 1 ही होगा, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई ना, ये पॉलिनोमियल थोड़ी ना हुआ। तो पॉलिनोमियल होने के लिए एटलीस्ट, पॉलिनोमियल मतलब एटलीस्ट डिग्री 1 हो, तो ठीक है, मतलब 1 तो डिग्री होनी चाहिए। तो हम क्या मानते हैं कि अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एटलीस्ट डिग्री 2 तो होगी उस एक्सप्रेशन में, ठीक है। बाकी कौन 1 वाली हो चाहे ना हो, लेकिन 2 डिग्री ज़रूर होनी चाहिए, यानी कि ए नॉट इक्वल टू 0 मानते हैं हम, और ए बी सी रियल नंबर्स मानते हैं, ठीक है। अगर ए ही 0, अगर ये कंडीशन हम नहीं डालेंगे तो ए 0 होने के चांसेस रहते हैं, जैसे बी के 0 के चांस हैं या नॉन ज़ीरो के चांस है, सी कुछ भी हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है या नॉन ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। लेकिन ए कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि x की पावर 2 कंपलसरी है, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन हमने क्या माना है, ये क्वाड्रेटिक मतलब x की पावर 2 तो आएगी। ऑल राइट, तो ऐसे ही अगर मैं क्यूबिक की बात करूँ तो क्यूबिक मतलब 3 डिग्री, यानी कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी।
अब देखो यहाँ 1 डिग्री है, एक्स की पावर कितनी है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। मैक्सिमम 3 हो गई, यानी कि डिग्री 3 हो गई। तो ये क्या हो गया अपना, क्यूबिक हो गया ये, ठीक है, क्यूबिक हो गया। और इसमें फिर हम क्या मानेंगे, हमारे पास कोफिशिएंट्स ए बी सी और डी, ये सारे क्या होंगे, नॉन ज़ीरो टर्म्स होंगे, वो रियल नंबर्स होंगे। और ए मेरे को नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ताकि ये क्यूबिक रहे, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर कि ये कंडीशंस कैसे आई, जो ये हाईलाइटेड कंडीशंस हमने दिखा रखी है ना, ये कैसे आए। ओके, अब हमने पढ़ लिया कि हमारे पास पोलिनोमियल मतलब एक्सप्रेशंस देखना और उसकी डिग्री निकालना, ठीक है, ये सब हमें पता लग गया। और उसका टाइप निकालना, अगर वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ठीक है। जनरली अपने कोर्स में क्वाड्रेटिक तक रहेगा, क्यूबिक भी जा सकता है, बहुत रेयर केसेस में आएगा, ठीक है। ऑल राइट, अब देखो, अगर कोई तुम्हारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है, जैसे कि तुमने बोला 2x+1, ये क्या है, पोलिनोमियल इन x है, मैंने px मान लिया है, ठीक है, px ही है, इज इक्वल टू px ही है ना। अब मैं चाहता हूँ कि x की कुछ वैल्यू डालूँ ताकि मेरे को पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू मिल जाए, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाए, है ना। तो लेट्स से मैंने x की वैल्यू डाल दी 1, ठीक है। तो मैंने क्या निकाला है, 2 × 1, x की जगह डाल रहा हूँ मैं, सिंपल है ना, 2, x की जगह 1+1, तो 2 × 1 +1 दैट गिव्स मी 3। इट मीन्स 3 मेरे पास एक्सप्रेशन आ गई जब मैंने इसमें x इज़ इक्वल टू 1 डाला, यानी कि p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 3 है। आई एक्सप्रेशन समझ में आ गया है कि p ऑफ 1 मतलब क्या होता है जब x इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब कि अगर कोई पॉलिनोमियल है px इज़ इक्वल टू ax+b, तो इसमें अगर मैं x की कोई भी वैल्यू k पे, अगर लेट से इसका एक्सप्रेशन c के इक्वल आता है, तो आइल से, है ना, ये सॉल्व करूँ मैं, तो c के इक्वल आता है, तो आई कैन से p ऑफ k इज़ इक्वल टू c, ठीक है। सिमिलरली अगर, ठीक है, जैसे कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है x² - 3x+4, तुम, ये क्या है, ये px है, लेकिन इस बार ये क्या है, लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना। तो है तो x ही का ही ना, तो हमारे पास a की वेरिएबल है, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं जो x है। तो x की वैल्यू तुम कुछ भी डाल सकते हो। सो लेट्स से मैंने डिटरमाइन करना चाहा कि x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, तो p ऑफ 0, 0 + 3 टाइम्स ऑफ 0 + 4, इट मीन्स ये 0 हो गया, 3 0 0, 3 × 0 0 होता है, +4, इट मीन्स मेरा एक्सप्रेशन आ गया 4। तो p ऑफ 0 मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये तो क्लियर है कि p ऑफ 0 कितना बन रहा है, ठीक है, p ऑफ 0 इज इक्वल टू 4, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब ये तुम्हें पता लग गया कि p ऑफ 1, p ऑफ 2, ठीक है, ऐसे किसी की भी px जो एक्सप्रेशन है पोलिनोमियल का, उसमें x की कोई भी वैल्यू पे तुम लेट से k पे, तो p ऑफ k की तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर कुछ ऐसे भी तुम x डालते हो, px में ऐसे तुम x डालते हो, लेट से x इज इक्वल टू k तुम डालते हो, कि तुम्हारा पूरा एक्सप्रेशन p ऑफ k इक्वल्स टू 0 हो जाता है। आई बात समझ में, मतलब तुमने x इज इक्वल टू k डाला, कोई ऐसी वैल्यू डाली k के बराबर, कुछ भी हो सकता है k, ठीक है ना, कांस्टेंट कोई भी हमने एक एज्यूम कर लिया, 1 2 3, मतलब 0 -1 -2 कुछ भी हो सकता है। तो उस वैल्यू पे तुमने x की अगर वो वैल्यू डाली अपने पूरे पोलिनोमियल में, तुम्हारे पास 0 आ गया आउटपुट, ठीक है। तो 0 आ गया, तो मतलब कि वो तुम्हारा जो x इज इक्वल टू k होगा, जो तुमने डाला है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ज़ीरो ऑफ दी पोलिनोमियल px, क्योंकि उसने पोलिनोमियल px को ज़ीरो कर दिया, तो इट मीन्स इट इज़ अ ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल px। सो x इज इक्वल टू k, इफ़ pk इज इक्वल टू ज़ीरो, देन x इज इक्वल टू k इज़ ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल px। ये एक स्टेटमेंट समझ आई, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ कि लीनियर पॉलिनोमियल की, ठीक है, किसी की भी, लेट से मेरे पास है 2x + 3, ठीक है, तो 3x + 3 मान लो, ठीक है।
तो 3x+3 के लिए तुमने x इज इक्वल टू, ये पी एक्स है ना, पी एक्स मानते हैं ना हम इसको। तुमने x इज इक्वल टू -1 डाला, तो 3 टाइम्स ऑफ -1 प्लस 3, यानी कि ये हो गया -3 + 3, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो इट मीन्स दैट p ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 0। तो यानी कि x इज इक्वल टू -1 इज़ माई 0 ऑफ माई पॉलिनोमियल 3x+3, यानी कि px। ठीक है, ये क्लियर है। अब तुम अगर क्वाड्रेटिक की बात करें, है ना, क्वाड्रेटिक की बात करें, तो लेट्स से x² -3x-4, तो क्या होगा इसमें, तुम रैंडमली अब x की वैल्यू डालते रहोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि p ऑफ -1, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ये, ठीक है, जस्ट टाइम बचाने के लिए, और p ऑफ 4 पे जब तुम x इज इक्वल टू -1 डालोगे एक बार और x इज इक्वल टू 4 डालोगे, तो तुम्हारा px 0 हो जाएगा, पूरा पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। इट मीन्स तुम्हारे ज़ीरोज़ कौन कौन से हो गए पोलिनोमियल x² -3x-4 के लिए, -1 और 4, ये मेरे ज़ीरोज़ हो गए। 2 ज़ीरोज़ आ गए। क्वाड्रेटिक, ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, डिग्री 2 है, तो 2 ज़ीरोज़ आ गए। लीनियर में तुम्हारे 1 आ रहे थे, है ना। ठीक है, तो अभी ये चीज़ याद रखो कि क्वाड्रेटिक में अपने 2 आए थे और लीनियर में 1 आया था, और ज़ीरो पोलिनोमियल का क्या होता है। ठीक है, ओके। सो अब देखो, अब इस चैप्टर में हम क्या डिटरमाइन करेंगे कि बेसिकली हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं ना, अब जैसे देखो, तुमने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसे ax+b, है ना, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तुमने इसका ज़ीरो निकालना चाहा तो तुमने x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिस पे पूरा ज़ीरो हो जाए, यही ज़ीरो होता है पॉलिनोमियल का, है ना। तो लेट से तुमने पूरा इक्वल टू ज़ीरो रख दिया, तो ax इक्वल टू -b हो गया, इधर चला गया b, और x इज इक्वल टू -b/a हो गया। तो बेसिकली अगर तुम x इज इक्वल टू -b/a इसमें डालते हो तो ये तुम्हारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको ये सॉल्व करके दिखाऊँ मैं, तो ax+b, है ना, तुमने निकाला था x इज इक्वल टू -b/a, ठीक है, ज़ीरो इसका। तो a अगर मैं इसमें डाल देता हूँ ये -b/a, है ना, प्लस b, तो a से a कट गया, ये कितना बच गया, -b, और यहाँ कितना आ गया, +b, यानी कि ज़ीरो हो गया है। इट मीन्स x इज इक्वल टू -b/a, ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल ax+b। और ये मैंने कैसे डिटरमाइन किया, मैंने पूरे पोलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो रख दिया, और जो x की वैल्यू आई मेरे पास, है ना, वो मैंने बता दिया कि ये ज़ीरो है। ठीक है, तो इट मीन्स मेरा ज़ीरो है जो पोलिनोमियल, वो -b/a हो गया, किसके लिए, ax+b के लिए, यानी कि माइनस ऑफ माई कांस्टेंट टर्म प्लस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि एक ये वाला b और a क्या है, ये कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट के टर्म्स में तुम्हारा ज़ीरो निकल रहा है। तो हम इस चैप्टर में ये डिटरमाइन करेंगे कि क्वाड्रेटिक में भी क्या ऐसा पॉसिबल है, अदर पोलिनोमियल्स में ऐसा पॉसिबल है कि हमारा ज़ीरो जो आएगा पोलिनोमियल का, वो कांस्टेंट टर्म्स, यानी कि कॉफिशिएंट्स, कांस्टेंट टर्म और कॉफिशिएंट्स इनके टर्म्स में आ रहा है, ए बी सी जो हमने पढ़े थे ना अभी, रियल्स होंगे, तो इनके टर्म्स में अगर हम ज़ीरो अपना निकाल पा रहे हैं, अगर हमारे पास सामने एक्सप्रेशन दे रखा हो, हम क्लियरली बता सकें कि भाई अगर हमको उनके कॉफिशिएंट्स पता हैं उस पॉलिनोमियल्स के, तो हम ज़ीरो डिटरमाइन कर सकें। तो ऐसे हम एक्सप्रेशंस देखेंगे। ठीक है, ओके। तो अब देखो, अभी तुम्हें ये पता लग गया कि ज़ीरो होता क्या है, लेकिन थोड़ा फील लेना पड़ेगा अब, है ना। सो व्हाट विल बी दैट फील विल कम इफ़ यू विल विजुलाइज दैट थिंग, है ना। तो हाउ यू विल विजुलाइज दैट थिंग, विजुलाइज जनरली हम मैथ्स में कैसे करते हैं, अपने ग्राफ्स में करते हैं, है ना। तो मैं क्या करूँगा, अभी हम क्या पढ़ेंगे कि हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस किसके पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स के, और उन ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन से उनकी जो मीनिंग ऑफ ज़ीरो समझेंगे कि एक्चुअली ज़ीरो कब आता है। ठीक है, तो लेट से मेरे पास एक पोलिनोमियल है ax+b फॉर्म का, जैसे कि मैंने ले लिया, यहाँ पर जो ले रखा है वही लेंगे हम। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x+3। तुमने क्लास 9th में इसका ग्राफ प्लॉटिंग सीख लिया है। ठीक है, तो मैं ये एक लीनियर लाइन बनेगा, ठीक है, और वो कैसे बनेगा, x की वैल्यू डालते रहोगे, y की निकालते रहोगे, तो यहाँ सिंपल प्लॉट कर दोगे एक्स वाई का पेयर, है ना, एक्स वाई का पेयर प्लॉट कर दोगे। तो मैंने जब ये पूरा प्लॉट किया, ठीक है, ये हम स्किप कर रहे हैं, कैसे प्लॉट करेंगे ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो तुम, इजी चीज़ है, नहीं आता है तो कमेंट कर देना, आई कैन
टेक अनदर लेक्चर टू एक्सप्लेन कि भाई कैसे प्लॉटिंग होती है, ठीक है। ओके, सो देखो प्लॉट कैसे हो रहा है कि 0,3 ये प्लॉट हो रहा है ना, ये तुम्हारा प्लॉट हो गया। अब तुम्हें साफ पता लग रहा है कि तुम्हारा ज़ीरो कब होता है पोलिनोमियल। पी एक्स पोलिनोमियल क्या है तुम्हारे पास यहाँ पे, वाई है ना, 2x+3। पी एक्स मतलब वाई इज़ इक्वल टू 2x+3, है ना। तो ये वाई और एक्स के तुमने पेयर बनाया, वो तुम्हारे पास पूरे ये आ गए, ठीक है, ये ग्राफ बन गया। तो अब जब y इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है ना, जब पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो होता है, वही तुम्हारा ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल होता है। x की जिस वैल्यू पे ये पूरा y तुम्हारा ज़ीरो होगा, वो तुम्हारा क्या होगा, ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगा, है ना। तो इस केस में y इज़ इक्वल टू ज़ीरो कब होगा, ये तुम्हारा y एक्सिस है, तुम्हारी x एक्सिस है। तो y इज़ इक्वल टू ज़ीरो कौन सी एक्सिस पे होता है, x एक्सिस पे सारे y ज़ीरो होते हैं, है ना। तो अगर मैं डिटरमाइन कर लूँ कि मेरी ये जो x ये लाइन है बेसिकली, ये इस वाली लाइन को कब इंटरसेक्ट कर रही है, अगर इस वाली लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो इस पॉइंट, ये पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट पे y इज़ इक्वल टू तो ज़ीरो रहेगा, है ना। देखो y की वैल्यू यहाँ आई ज़ीरो हो गई, और x की कुछ वैल्यू रहेगी, तो वो वाली x की वैल्यू तुम्हारा रूट बन जाएगा। एक बार फिर से समझो, y इज़ इक्वल टू 2x+3 ये पोलिनोमियल है। तुम इसका ज़ीरो निकालना चाहते हो, तुम इसको इक्वल टू ज़ीरो रखते हो, यानी कि तुमको ऐसी x, फिर तुम x की वैल्यू निकालते हो, तो तुम्हें ऐसी x की वैल्यू चाहिए जिस पे y इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, यानी कि 2x+3 इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो y इज़ इक्वल, तुमने अगर ग्राफिकली देखा तो तुमने y इज़ इक्वल टू x+3 को प्लॉट कर दिया, ये लाइन बन रही है, ठीक है। तो ये ज़ीरो कब होएगी, इसमें y इज़ इक्वल टू ज़ीरो कब होगा, तुमने ये हर एक पॉइंट इसका क्या है, हर एक पॉइंट इस पे जो है लाइन पे, ये बेसिकली x, y का एक पेयर है ना। जो तुमने ये वाले निकाले हैं ये पेयर्स हैं, इनसे बन के सारे पॉइंट से एक लाइन बनी है। तो ऐसा तुम्हें पॉइंट निकालना है जिस पे y तुम्हारा ज़ीरो और x की क्या वैल्यू होएगी, वो तुम्हारा रूट हो जाएगा या फिर वो तुम्हारा ज़ीरो हो जाएगा। तो यानी कि जहाँ पर x एक्सिस मतलब क्या होता है, y के सारे टर्म्स y क्या हैं, यहाँ पर ज़ीरो है ना y x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे ये मेरी जो ग्राफ ना, जो पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन होता है, जो ग्राफ होता है, इंटरसेक्ट करेगा, है ना, वो वाला पॉइंट मेरे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो ऑफ माई पोलिनोमियल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि ज़ीरो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इस केस में भी अगर मैं बोलूँ तो इस ये वाला पॉइंट क्या आ रहा है, देखो y इज़ इक्वल टू 2x+3 है और ये पॉइंट आ रहा है -3/2। तुम याद करो y इज़ इक्वल टू ax+b तुम्हारा कोई पोलिनोमियल था, तुमने ज़ीरो निकाला था तो -b/a था, है ना। तो इस केस में -b लिखोगे तो -3/a तो 2, है ना। इसको ax+b से अगर कंपेयर करोगे तो बी और ए डाल दोगे सिंपल, तो -3/2 आ गया, x इज इक्वल टू -3/2, यानी कि x इज इक्वल टू -3/2 तुम्हारा ज़ीरो हो गया। तो ये तुम्हारा क्या आ रहा है, ये x इक्वल टू -3/2 ही है और y ज़ीरो आ गया। इट मीन्स दिस इज़ माई ज़ीरो, दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो वो कैसे निकला है, ये पॉइंट कैसे निकला है, जब मेरा ये ग्राफ है x पे इंटरसेक्ट किया है, x लाइन पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे इंटरसेक्ट किया है, तब मेरा ग्राफ रूट वो मतलब उसका ज़ीरो निकल गया। तो आई होप इट इज़ क्लियर कि ज़ीरो कैसे निकला, ठीक है। ऑल राइट, तो अब ग्राफिकली तुम्हें ज़ीरो पता लगने लग गया, ठीक है, ज़ीरो क्या होता है। अब हम अगर क्वाड्रेटिक को प्लॉट करते हैं या ऐसे क्यूबिक को प्लॉट करते हैं, तब भी कुछ अलग अलग ज़ीरोज़ आएंगे, है ना। तो हमने देखो एक और जनरल रिमार्क होता है, लेकिन वो भी बाद में आएगा, ठीक है। तो अभी तुम क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को भी हम प्लॉट करके देख लेते हैं, लेकिन ये प्लॉटिंग ये पढ़ो कि प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ्स और क्यूबिक इज़ नॉट meant टू बी डन बाय स्टूडेंट्स। अभी तुम्हारी क्लास में ये प्लॉटिंग नहीं होगी, ये फर्दर हायर क्लासेस में आएंगी कि कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब मैंने इनको प्लॉट किया, जैसे ये क्या है, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, y इज इक्वल टू x², ठीक है, -3x-4। मैंने इसको प्लॉट किया, मैंने देखा कि ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, एक पे काट रहा है, दो पे काट रहा है। इट मीन्स मेरे दो ज़ीरोज़ हो गए, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 4। सिंपल वही चीज़ रखनी है, ठीक है। ये कोई इम्पोर्टेंस नहीं है ऊपर कब होगा डाउन कब होगा, ठीक है। ये जनरली पैराबोलाज होते हैं, इनको बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे
अभी हमको ये देखना है कि ज़ीरो कैसे डिटरमाइन करते हैं, मेन मोटिव ये है, ठीक है। अगला आता है हमारा कि देखो इस केस में तुम्हारे पास ये क्वाड्रेटिक है यानी कि डिग्री 2 है, तो तुम्हारे 2 ज़ीरोज़ आ गए, लेकिन और इस केस में भी 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं क्योंकि 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है तो ये भी वही ग्राफ ही ना, क्वाड्रेटिक का ही है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ है पॉलिनोमियल का, लेकिन पॉइंट 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी 1 पे कर रहा है, तो यानी कि एक ही ज़ीरो हुआ यहाँ पे मेरा, यही हुई वन ओनली ज़ीरो फॉर द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब और तीसरा केस क्या हो सकता है, जब ये इंटरसेक्ट ही ना करे। ऐसे भी तो हो सकता है कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, ऊपर से चला गया है कहीं पे, ये बहुत गैप बच गया बीच में है ना, बहुत सारा गैप बच गया, इंटरसेक्ट ही नहीं करा है। तो इट मीन्स मेरे पास अगर इंटरसेक्ट नहीं किया तो मेरी जनरल डेफिनेशन से मेरा पास ज़ीरो ही नहीं आया है इस पोलिनोमियल का, है ना। तो मेरे पास 3 केस आ गए। अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक है यानी कि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो 3 केस आ गए, 2 ज़ीरो, 1 ज़ीरो, नो ज़ीरो, ठीक है। 2 ज़ीरो, 1 ज़ीरो, नो ज़ीरो, इट मीन्स दैट मेरे पास 3 केसेस हैं जब ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जब वन एक केवल टच करके जा रहा है और जब टच ही नहीं कर रहा है एक्सेस, ठीक है, ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना टच कर रहा है। 3 केस आ गए, मतलब मैक्सिमम मेरे पास अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 आ रहे थे, या तो 2 भी हो सकते हैं रूट, या एक भी रूट हो सकता है, रूट मतलब ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो होते हैं जो, तो 2 ज़ीरोज़ भी हो सकते हैं, एक ज़ीरो भी हो सकता है। अगर मैं डिग्री 2 की बात करूँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, डिग्री कौन कौन से पॉसिबिलिटी हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़ आ गए, लेकिन मैक्सिमम 2 है, मिनिमम 0 है, ठीक है। सिमिलरली अगर क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स देखें तो ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी है, मान लो ये एक ही पॉइंट पे कर रहा है ना, एक ही पॉइंट है ना, टच करके जा रहा है, और यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, देखो ध्यान से है ना, ये 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे एक ही पॉइंट पे बस टचिंग पॉइंट है, ठीक है, और कोई एक्सप्रेशंस, तो मतलब कि क्यूबिक में मेरे पास क्या हो गया, क्यूबिक में पॉसिबिलिटी क्या हो गई, या तो यहाँ पर 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। तो एक मेरे पास जनरल चीज़ निकल के आई कि एट मैक्स मेरे पास 3 ही आ सकते हैं, ठीक है, 3 के अलावा कुछ, 3 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 3 से कम आ सकते हैं लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं आ सकते, किस में, अगर मेरे पास क्यूबिक वाला टर्म है। सिमिलरली अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक वाला था तो 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते थे, तो जो 2 ज़ीरो आ रहे थे, या 1 ज़ीरो आ रहा था, या एक भी नहीं आ रहा था, है ना। तो अगर डिग्री 2 थी तो मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ थे, अगर डिग्री 3 थी तो मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ आ सकते थे। तो हमने एक जनरल एक्सप्रेशन बना दी, इन जनरल अगर पोलिनोमियल पी एक्स है डिग्री n का, ठीक है, तो उसका ग्राफ होगा जो y इज इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पे एट मोस्ट n पॉइंट्स पे, n पॉइंट्स इंटरसेक्ट मतलब करेगा, तो n मैक्सिमम मेरे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो सकते हैं, n हो सकते हैं, है ना। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि अगर डिग्री n है पोलिनोमियल की तो मैक्सिमम एट मोस्ट n ज़ीरोज़ हो सकते हैं। ये आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ, ठीक है। तो अब ये कुछ एग्जांपल हैं, इसमें देखना कि ग्राफ देख के तुम्हें पता लगाना है कि कितने ज़ीरो होंगे। जैसे कि इसमें देखें तो 2 हैं सिंपल, 1 पे और 2 पे, तो जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतने ज़ीरोज़ हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। और ये एक्सरसाइज भी सिमिलर है। सो आई होप जो भी पढ़ाया इट इज़ परफेक्टली क्लियर। मैंने बहुत कोशिश करी है, मैं एक एक डिटेल में बताऊँ तुम्हें चीज़, है ना, बहुत ट्राई किया है मैंने। सो आई होप अगर ये सक्सेसफुल होगा ट्राई, और तुम्हें बहुत अच्छी से कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा कि ज़ीरो का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल का क्या होता है ना, उसमें एक्सप्रेशंस को कैसे हम पढ़ते हैं जनरली, ठीक है। तुम्हें स्टोरी पता लग गई होगी एक नॉर्मल इक्वेशन की क्या चलती है पीछे, ठीक है। आई होप अब तो तुम ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं यू आर वेरी मच कैपेबल नाउ टू अप्रोच दैम, बहुत सिंपल हैं, ठीक है। तुम्हें बस ये बताना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ आस्क, ठीक है। एंड या
इट वुड बी गुड इफ़ यू कैन शेयर इट योर शेयर द लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। हमें अपनी कम्युनिटी बढ़ानी है ताकि हमारे पास सोर्सेज बढ़ें, ठीक है। हम एक बड़ी टीम की तरह काम करना चाहते हैं टू क्रिएट अ बिग यूनिफॉर्म, ठीक है, रिफॉर्म इन दिस होल एजुकेशन। और आप हर एक का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस चीज़ के लिए, सो दैट यू कैन शेयर इट टू मोर एंड और मोर पीपल, ठीक है, टू द मोर नीडफुल पीपल। मैं पूरा ट्राई करूँगा कि जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, बेस्ट वे में मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, बिकॉज ऑल आई कैन गिव यू नाउ इज़ एजुकेशन, ठीक है। और वो भी एक बड़ी चीज़ होती है मतलब देना। सो आई होप कि यू विल सपोर्ट इन दिस माई दिस मोटिव ऑफ माइंड की टू स्प्रेड द एजुकेशन अक्रॉस नेशन फॉर फ्री, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।